Namaste ji, namaste. Welcome to Courtroom by TLOI. Today we have with us Rohit Singh. We are very proud to have him on our channel. He cleared the MHCT with a 99.7 percentile. That is absolutely amazing. And he was in our batch for 26. Let us have a conversation with him as to how to clear the MHCT. And he'll be detailing out his own journey, how he ended up securing this mark range, and he's from Bombay. He'll be joining JLC now very, very soon as the counseling comes to an end for this year. And then basically we'd start. हाँ जी रोहित जी बताएं कैसा लग रहा है क्या हुआ और कैसे हुआ and then graduation कहाँ से करी I always start with that. So graduation apparently from Khalsa College, Mumbai में भी एक. Great, wow, अच्छा. Economics. Oh, that's news. अच्छा, high five. High five. And law again, high five. Right. Perfect. This is working out well. Yeah. So yeah. I was in Delhi जब मैंने वैसे इंटरव्यू देखे थे YouTube पे. Right. एक another coaching थी, बहुत पहले enroll था मैं, but मुझे मजा नहीं आया honestly. ठीक है. And I enroll into because आपका इतना रिकॉर्ड है, सब पता था कि इतना रिकॉर्ड है और ये अच्छा रिकॉर्ड है, तो आई जस्ट सीख जी कर लेते हैं ये भी, बिकॉज ये भी जिंदगी बनाने की सवाल जवाब एंड लाइक आई डोंट वांट टेक रिस्क, राइट? आई वांट फ्रॉम द बेस्ट एंड मेरे को कोई दे रहा था, आई टेक इट. तो आई गेस आई जॉइंड इन दिवाली अराउंड. ओके, मेरा पूरा मिस हो गया था. 25. Yes. Okay. So I started from Diwali, and the first thing I did was Constitution मैंने पूरा कर लिया था, polity, because that's a subject that I love. Right. पता नहीं क्यों कर लिया. It was really interesting. I really loved the way you taught. Yeah. फिर धीरे-धीरे करना चालू हो गया. Polity थी, and I also love GK and all. I love reading. मैं ऐसी newspaper कभी भी उठा के पढ़ लेता हूँ ये. So these two things were very, very simple for me. Okay. Yeah. I did practice for I did prepare for every exam. तो ओडिशा के लिए भी कर लिया था, CUT PG के लिए भी कर लिया था, and just in case because you said कि यार वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करो, है ना? बस कर लो, क्या पता एकदम बुरा ही दिन निकल जाए, उस दिन कुछ हो जाए. Just prepare for the worst. You just have to prepare for the worst in life and hope for the best. Exactly. And hope for the best. Yeah. So it was maths and computer भी वो भी था, वो भी पढ़ लिया हमने, सभी करके रखा. करा सब था, दिया सिर्फ MHCT. वाह. ऐसा हो गया था सर. अच्छा. Oh. ये तो this is remarkable in fact. Yeah. हाँ, ये जिंदगी का कुछ नहीं पता जी. जिंदगी का लोग कुछ भी कहते हैं. मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. I had a top-notch student back, I think in 23. She prepared only for NLSAT कि मैं और कुछ ही नहीं करूंगी जी. मैं तो जी I am all in on the paper, and she could clear it also. मतलब she could have, but she did not. हुआ क्या, एग्जाम से 2 दिन पहले चढ़ गया जी बुखार. एग्जाम डे 101 when she went to NLU Delhi to attempt the paper. That time NLU Delhi center पड़ता था. Where she was sitting, AC उसके सर पे था. She started shivering. Part B आधे से ज्यादा छूट ही गया. And then basically she eventually went to Jindal. कि मतलब मेरे को तो जाना ही, मतलब in a fancy sort of a place है, तो मैं नहीं. But NLSAT निकल सकता था by the way. बहुत पोटेंशियल थी उस लड़की के अंदर. बट जिंदगी का कुछ पता नहीं होता what it does. And young souls therefore need this guidance that you be prepared for everything and basically be a pessimist कि सब उल्टा हो जाएगा. but you prepare for everything and then hope for and give it all your basically your all, and then basically take your best shot. से वाला scene. अच्छा. हाँ बताओ. I do want to say this, like whoever seeing the interview कि मेरे से for some reason मैं वो पेपर नहीं दे पाए सारे, but आप लोग ऐसा नहीं करना, give every exam, क्योंकि now when I think about it कि अभी MSc तो निकल गया. I do also think it is my luck कि आप कुछ अच्छे कर्म हो गए तो निकल गया. बिल्कुल ठीक बात. तो थी 90% 95%. But just in case give every exam. शायद NLSAT निकल जाए, कोई बहुत बढ़िया पेपर निकल जाए. This is something that I don't want anyone to repeat. मैंने जो गलती करी प्लीज ना करें. सब पेपर दे and सब अच्छे से दे, सब हो. भगवान करे सब लगे आपका. जी. Yes, यही बिल्कुल genuine advice. So now we basically now go through sections of the paper. Sure. So let's start with English, I believe. You know, MHCT starts out with English. What do you have the suggestion? Because you have to basically talk to your younger self.
लेट अस से द प्री दिवाली सेल्फ वेयरइन पढ़ाई नहीं कर रखी थी एंड क्या करना चाहिए, वेयर डू यू स्टार्ट फ्रॉम? सर ओके, सर 99.7 परसेंटाइल व्हाट आई थिंक इज कि बहुत सारी चीजें मैंने सही करी है. इट्स जस्ट दैट कि आई शुड हैव प्रिपेयर्ड थोड़ा जल्दी, या थोड़ा मोर रिगरसली. और या एंड यस सर, एंड ऑनेस्टली आई ओनली थिंक कि मुझे और सारे पेपर्स थोड़े दे देने चाहिए थे अगर होता तो. बाकी आई थिंक बाकी सब आई डिड परफेक्टली. यू सेड कि आप मॉक्स दीजिए, लाइक आपने मॉक्स देके रखे थे 10 और बहुत मॉक्स थे और भी एक्स्ट्रा मॉक्स थे उसमें अलग एमएससीईटी के सेक्शंस में. तो आई प्रिपेयर्ड एवरी मॉक. टेक्निकली मैं वर्स्ट के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था. जो आपने बोला मैंने वो किया, ऑनेस्टली से. ठीक है, नो फिल्टर्स. आपने जो बोला मैंने वो किया. यू सेड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, आई प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. राइट. इंग्लिश वाज गुड. दिक्कत मेरे को आई थी थोड़ी सी लॉजिकल में और थोड़ी सी मैथ्स में. राइट. या सो आई वुड से कि और कंप्यूटर तो ऑनेस्टली सर मेरे को समझ ही नहीं रहा था कंप्यूटर से है क्यों. वो तो सीयूटी पीजी का ही मामला है ना वैसे भी. हाँ, तो है सीयूटी. या क्योंकि मेरे दिमाग में था कि देना है वो भी पेपर, सभी देना है. तो मेरा ये था कि ये मैं कंप्यूटर कर क्यों रहा हूँ. बट आई ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग यू सेड कि देखो यार पेपर निकालो, बाद में सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है. है ना. वो पढ़ाते टाइम हमें भी ये होता है वैक्यूम ट्यूब. मैं लॉ का टीचर हूँ, मैं यहाँ वैक्यूम ट्यूब पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ना तो है ही क्योंकि सीट निकालनी. ट्रू. तो मैं भी वही था कि ये सब बाद में सवाल कर लेंगे कि क्यों है क्यों नहीं, लड़ भी लेंगे, लॉयर बन जाएंगे तो क्यों डाला है, लेकिन पहले पढ़ लो, सीट निकाल लो. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. राइट. दिस इज समथिंग दैट एवरीवन सब लोग भाग रहे हैं इसके पीछे. राइट. गेट वन सीट. या देन गेट इट डन. जीएलसी में तो सीटें वैसे भी इतनी मुश्किल हैं. आई टेल यू, लाइक अक्षत ऑफ आवर बैच, ही सिक्योर्ड 100 परसेंटाइल. ही प्रीटी मच 4 लोगों की 100 परसेंटाइल आई है. So we can't say that he was rank 1, but he's rank 1 or 4. God only knows what he is. Tie breaker लगा. He's going to DU. तो वो एक सीट खाली होएगी तो नीचे वालों को भी मिलेगी. लास्ट ईयर आई थिंक MHCT OMS स्टूडेंट GLC cutoff was 99.66 percentile. I very clearly remember this. And मिलती नहीं है सीटें. ये मिलती कहाँ है सरकारी कॉलेजों में सीटें. और अब तो और ज्यादा जब से ये NEP वगैरह सबसे आया है तब से तो और ज्यादा मतलब शॉर्टेज हो गई. लेगेसी कॉलेज का एग्जाम देके with getting that name of the college associated with you serves you critically for life. मतलब you understand the importance very late. मतलब कि अच्छा यहाँ पे अच्छा हो, ये भी था. Because ये एक एंट्रेंस एग्जाम निकाल के बहुत छोटी सप्लाई है सीटों की, वो निकाला गया. This is, I'm extremely proud of you. I'm extremely proud. Thank you, sir. I do want to say, sir, जब पेपर दे रहा था आप ही आते सर दिमाग में. आई नो आपको और स्टूडेंट्स ने भी यही बोला, बट वही होता है सर. लॉजिकल का एक सेक्शन था, आई डोंट रिमेम्बर वो स्क्वायर्स के अंदर कितने स्क्वायर्स होते हैं. आपने बोला था अगर ये आ गया तो 8 लिख के आ जाना. ठीक है. समझ गया सर. अच्छा. हाँ, आई टेल यू मेरे शिफ्ट में सर मेरा 45 मिनट्स बाकी थे सर. मेरे पेपर मेरा हो गया था पूरा पेपर. एंड आई वाज जस्ट सिटिंग कि अब क्या करूं. वाह जी वाह वाह. ये एक्चुअली हुआ क्या है कि दुनिया को पता नहीं है. ये रेलिगिया में इतने साल हो गए ये सब कराते हुए. अब आई थिंक इट्स बीन लाइक अ डेकेड दैट वी आर डिवोटेड टू दिस. ठीक है, बीच में एक आध साल हमने थोड़ी बहुत ब्रेक लगा ली थी बिकॉज़ वी वर बिजी विद द जुडिशरी बैच. बट ये वाले जो क्वेश्चंस जो ये जो है ना, ये फिक्स्ड ही हैं और ये एग्जाम से पहले ही आने चाहिए. यू कांट इवन, अगर वहां बैठ के आप गिनना भी शुरू करेंगे ना उन स्क्वायर्स को, वो होगा नहीं. वो होता नहीं है. वैसे वाला सीन है. सर आई टेल यू मेरे सामने एक और कंप्यूटर था. तो मैं 45 मिनट्स बचे हुए थे. मतलब क्या करूं समझ नहीं रहा है. एक बार फिर मैंने 15 मिनट में एक और बार पेपर चेक कर लिया. तो मैं थोड़ा देखा लोग किधर है. 2-4 बच्चे और सॉल्व कर गिने जा रहे हैं कि कितने स्क्वायर है उसके अंदर. मैं बोला अरे भाई साहब इनका तो टाइम लग जाएगा. लॉजिकल की ट्रिक है वो तो. एंड ये आई बिलीव किसी भी जो भी तैयार करा रहा हो पेपर, उसका धर्म है, उसकी ड्यूटी है टू डू दिस, कि सॉल्व दिस beforehand. Basically make these students comfortable with this sort of a question. So even if they twist it, let's say they completely discard it and they twist it, the student is able to solve it. That's और मजा भी जब ये आता है कि वाह जी हम ये पढ़ के गए थे and we were able to solve it. वो एक तरह से it gives you that sort of a confidence boost, no? Yeah. है ना वैसे बात. Yeah, even when I came back, like एग्जाम देके, एग्जाम के पहले I was a bit worried. एग्जाम के पहले जो लीगल जो सेक्शन है, लीगल सेक्शन
आपने ही सब कुछ करवा के दिया था, तो लीगल सेक्शन मेरा अच्छे से नहीं हुआ था, या क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी। आई वाज रियली वरीड कि लीगल अच्छे से जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। राइट राइट भगवान की दुआ से अच्छे से चला गया, हाँ ठीक-ठीक पेपर आए। कुछ राइट कुछ ऐसे कुछ रिगार्डिंग जजमेंट्स के ऊपर कुछ सवाल आए थे, बट ठीक है, वो सब हो गया आराम से, आई गॉट 99.7। मैं घर पे आया, वाज रियली श्योर कि एटलीस्ट ना करके 99% तो आने ही आने हैं। राइट राइट एंड व्हेन आई सॉ दी, जब मार्क्स आए, एंड व्हेन आई सॉ, आई कुडंट बिलीव, आई वाज जस्ट रीचेकिंग कि मैं ही हूं ना, रोहित सिंह अगेन, पक्का रोहित सिंह, ये मेरा ही फोटो है। हमारे तो वो रिजल्ट्स वाले पोस्टर में हमने जिससे बनवाया उसने रोहित कुमार कर दिया था पिछले वाले वर्जन में। मैं कहा, तो इसको सीधा, इसको तो ठीक कर यार, ये क्या कर रहा है। तो कह रही जी पता नहीं, कह रही कोई दो रोहित तो नहीं थे ना बैच में, कह रही जी एक ही रोहित था हमारे बैच। मुझे भी स्टार्टिंग में लगा कि शायद कोई होगा रोहित कुमार, उसने भी 99.7, आई जस्ट 99.7 या हमारे यहाँ से जितने आए, अक्षत आया वाज 100% आया, यू 99.7, आई बिलीव राजकिशोर है मुखर्जी, अभी उसके साथ बातचीत अभी करनी है, 99.3 आई बिलीव। एंड मतलब एवरीवन, क्योंकि लोग एमएचसीटी देने गए ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सेंटर ही बंद कर दिया, बॉम्बे के बाहर सेंटर ही नहीं था। तो मैंने मतलब ये, अगर ये दिल्ली वगैरह में अगर इनको क्वेश्चन पेपर करने को मिलता टू दी एवरेज बैच, मतलब ये कंपटीशन वुड हैव शॉट थ्रू द रूफ। MHCT का क्या है? MHCT is the exact replica of an exam known as DULLB, which used to exist till 22. It was a law entrance, just like what MHCT मतलब is even today in its form. तो वो हमें करानी आती है। This specific paper तो हमें मतलब बहुत अच्छे तरीके से कराना आता है। इनफैक्ट हमें सभी कुछ कराना आता है, बट ये हमारी वो एक होती है ना कि एक हलवाई की एक खास, हर किसी की एक मिठाई होती है। This specific format in which legal is asked, that is, that is us basically, because we were born from there. We were essentially born from there. We started out from DULLB, then we went into NLSAT, then we went into judiciary. तो वो कोर हमेशा ना आदमी की वहीं रह जाती है। तो वैसे वाला सिनारियो। अच्छा, करंट अफेयर्स का क्या करें? करंट अफेयर्स सर, हल्क या जिंदाबाद। मैं पहली बार सर हल्क देखा, इट वाज रियली फनी, बिग हल्क, यू नो, ऑन द पोस्टर, द फ्रंट पेज। नाम ही इसलिए रखा हुआ है। हाँ। इट वाज, एवरीथिंग वाज देयर, आपने सब मार्क कराया, पहले हमने लिखा था, एंड देन जैसे जैसे नोट्स आए हमने सब मार्क किया। व्हाटएवर आई यूज्ड टू डू इज कि आप जो भी पढ़ाते थे, मैं एक बार उसे रात में और अगले दिन सवेरे पढ़ लेता था, जस्ट टू रिवाइज कि क्या चल रहा है। करंट अफेयर्स मेरे को वैसे भी पढ़ना पसंद है, तो और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था, उसमें कुछ जोक्स भी थे थोड़े बोड़े कि पढ़ लो अभी क्या है ये सब। दैट वाज रियली फैन। वो बीच वाले उसमें धक्का मारना पड़ता है ना। या क्योंकि आदमी को, बच्चे को इंजेक्शन लगाना है, तो थोड़ा बहुत हंस खेल के इधर इधर डिस्ट्रैक्ट करके इंजेक्शन लगवाता है ना आदमी, नहीं तो वो बच्चा रोते रहेगा, यार ये क्या करा दिया इन्होंने हमारे सर पे। मोस्ट करंट अफेयर्स क्लासेस आउट देयर आर जस्ट रीडिंग टेक्स्ट फ्रॉम अ स्क्रीन, एंड उससे ज्यादा दाल गलती नहीं है इन माय एक्सपीरियंस। यू जस्ट हैव टू रियली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ड्रिल द करंट अफेयर, एंड देन यू हैव टू मेक इट रेलेवेंट एज वेल। या जो आपने जिस तरीके से पढ़ाया, तो आई लव लर्निंग, आई वुड जस्ट पिक अप अ बुक एंड आई वुड स्टार्ट लर्निंग, और कोई डॉक्यूमेंट सीरीज देख लूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा। राइट। व्हाई आई लाइक दिस क्लासेस सो मच, इसमें मेरे को मालूम है कि आप सिखा रहे हो, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी कि सिखा रहे हो, बट ये भी की सीट भी निकालनी है। राइट। आई लाइक दी, वो जो प्रोपोर्शन है, दैट्स व्हाट आई लाइक ऑनेस्टली। एंड आई आल्सो वांट टू से दिस वन थिंग सर, आई एम रियली थैंकफुल कि यू नो आप ये सब इतना सब हो गया। माय दादाजी, नाउ ही इज नो मोर, बट एक बार ना हम लोग, सो आई कम फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली, तो नेवी कोलाबा में नेवी नगर है, तो हम लोग जाते आते रहते हैं। एक दिन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम कोलाबा, तो कोलाबा के पास में जीएलसी है, ज्यादा दूर नहीं, चर्च गेट के पास है। तो ही वाज जस्ट, मैं वाज इन 11th स्टैंडर्ड और मेरा कुछ मन नहीं था, आई वाज थिंकिंग कि आई वुड डू, जस्ट अ सेकंड, हाँ, सो सर मेरा ये था कि मेरा कुछ मन था नहीं कि लॉ हुआ तो कुछ था नहीं, आई वाज लाइक कि साइंस में पीएचडी फिजिक्स में कर लेंगे, दैट वाज समथिंग आई लव्ड। और मुझे बुलाया, उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा कम हियर। क्या हुआ? आई वांटेड टू डू लॉ फ्रॉम दिस कॉलेज। वाह, मेरी तो आत्मा खुश और उनकी भी आत्मा खुश। एग्जैक्टली। ये सुनकर, ये होती हैं रियल लाइफ लेगेसी स्टोरीज। यस, तो इसलिए सर दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू कि क्या यू सेड कि जिंदगी करवाती है, और शायद वो कहीं लिखा हुआ था। हाँ। शायद बाबा के मुंह से निकला और शायद उनकी सरस्वती बैठ गई कि जी यहीं से ही होना है आपका।
And you know those genetics, ठीक है, atheists will say ये सब क्या हो रहा है, but I like to believe जो DNA, जो genetics, जो आपका खून जो बह रहा है, वो खुश होता है कहीं ना कहीं. True. बिल्कुल वो खुश होता है. And we are all, I mean, whoever I am is because of my ancestors. Whoever you are is because of your ancestors. और अगर वो काम हो जाए, I mean, nothing like it in the world. No other feeling greater in the world. Even if you could have cleared IIT Kharagpur while coming from a science background, but GLC will remain GLC for the family, है ना? Because ये वाला ऐसे वाला scenario है. True. Okay. Then we go to static GK. Static GK again, sir. Originally West UP से हूँ सर, तो मैं static GK is good, really good. Yeah, वो तो हम बात करते ही थे क्लासेस में कि यूपी Yes. बिहार वालों का कोई कंपटीशन नहीं है. Yeah, true. तो मैं तो इंटरेस्ट से पढ़ता था कि वो किताबें एंड ऑल, वो Yeah. अरुंधति रॉय, आई ऑलरेडी न्यू, मैंने जानता था अरुंधति रॉय को, तो इट वाज Right. वेरी इजी फॉर मी. Right. बट यस व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि जो भी मैं पढ़ता था, आई नो द इट वाज वेरी ब्रॉड, सो आई वुड अगेन से दिस अगेन, आई वुड से दिस अगेन कि भाई जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एक बार या तो सवेरे या तो रात को एक बार देख लो, क्योंकि है भले ही इजी है, क्लासेस आपको इजी करवा के दे देंगी, पर इतना ज्यादा मटेरियल है कि आपको पढ़ना है वो. Right. आपको लिखना तो है ही, आप लिखवा तो रहे ही हो, Yeah. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू जस्ट रिवाइज इट, क्योंकि आपको ये सब याद रखना है. एंड Right. इफ समवन इज गिविंग CUET PG, तो फिर उसको मैथ्स भी है, कंप्यूटर भी है, जीके Yes. भी है, करंट अफेयर्स भी है, इंग्लिश भी है. इंग्लिश तो वैसे हाँ. हो जाती है, इसमें तो कोई हो जाती है. दिक्कत नहीं Yeah. होती. Yeah. आई लव इंग्लिश में, तो मेरे को अच्छा मजा आया. आई लर्न समथिंग न्यू अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. Yeah. मैं उसकी वजह से इंग्लिश को कुछ अलग नजरिए से देखने लगा, Right. क्योंकि द वे वी स्पीक, Yeah. जो द वे इट इज आस्क्ड, ये दोनों डिफरेंट है. That's why many people, so in the NLSAT, so we did, I think we did a discussion video with Prachi also. So the biggest myth is that if you can speak good English, or you will be able to solve competitive exam English, and it's the exact opposite. In my own experience, competitive exam English is starkly different from the way we speak. And Yes. because we, like for example, commonly we say, "Oh, I gave the exam," but in a competitive exam they'll mark you, "I took the exam," yeah, I'm taking the Yeah. exam. And that's the major problem. True. If you do not know about those question tags, like "open the door for me," will you, or अगर वहां पे होगा "will you," "won't you," well, मुबारकबाद है जी आपकी, because now both friends are FRIEND भी ठीक है, और FREIND भी ठीक है. Competitive exam English is different from spoken English. Yeah. वैसे वाला scenario. So ये ऐसे ही हो गया, और फिर इंग्लिश तो सर वो तो नजरिया चेंज हो गया मेरा इंग्लिश को लेके कि एक्चुअली कुछ और होती है. लीगल. हाँ. So लीगल थोड़ा मैंने लेट चालू किया था. Yeah. And I was actually worried about legal. Right. क्योंकि थोड़ा ज्यादा, आई थॉट कि थोड़ा एक्सटेंसिव है, ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा डिफिकल्ट है. Yeah. बट बस यही है सर, रोज करो, रोज प्रैक्टिस करो, है ना, एंड तुम्हें समझ में आ जाएगा. लीगल तो आपके बैच में आई बिलीव वी इंट्रोड्यूस दोस मॉड्यूल्स, दोस वाले जो मॉड्यूल्स है जो करा दिया था बेसिकली, है ना. हां, आई वाज रियली टेंस कि यार ये इतना बड़ा है, कब होगा, जल्दी हो जाए, बट इवेंचुअली हो गया वो. इट वाज जस्ट दैट कि एग्जाम के पहले तबीयत खराब हो गई, मैंने लीगल एक बार रिवाइज कर लिया था, ठीक है, लेकिन मेरे को एक और बार रिवाइज करना था, वो रिवाइज नहीं कर पाया. आई वाज रियली टेंस कि यार मैं भूल गया, क्योंकि वो एग्जाम डी-डे के पहले तो लगता ही है कि यार कहीं कुछ होना जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए. Yeah. But everything went well. Then we go for logical and maths. Yeah. Maths, sir, maths मैंने आपका बेस like चली गई. No worries. We जाती नहीं सर यहाँ पे. कोई बात नहीं. That's a good omen. No worries. Okay. तो we हम लोग, हमारे इंटरव्यू रियल होते हैं जी. हाँ. अच्छा, फिर So logical maths, sir, logical वही आपने बताया सर, आपने एक दे दिया था कि करते रहो. एंड लॉजिकल आई फाउंड इट इजी, बट मैथ्स तो मेरे में बहुत टाइम हो गया था मेरे को मैथ्स करे हुए, तो मैथ्स वाज अ बिट डिफिकल्ट. ठीक. मेरे बैक ऑफ द माइंड ऑनेस्टली ये था कि शायद मेरे को बाय द टाइम मैं सब रिवाइज कर रहा था, आपने जितना भी सब मॉड्यूल, आपने अलग से क्लासेस, अलग से मॉड्यूल भी दिया था मैथ्स के लिए. तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल ऑफ इट. आई वाज लाइक सब कर लेते हैं. तब तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद CUET PG नहीं दे पाऊंगा, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, लेकिन कर लेते हैं. तो आई डिड इट. बट आई वुड से कि जिसको मैथ्स नहीं आती है, जस्ट थोड़ा पहले से आप एनरोल हो जाओ, ओके, एंड प्रैक्टिस. मैथ्स इज जस्ट ऑल अबाउट प्रैक्टिस, दैट्स इट.
Yes, it is. Yes, it is. मैथ्स के अगर आप ऐसे 5-6 या दिन में अगर 10 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हो, बट कंसिस्टेंटली कर रहे हो, वो आपको समझ में आ जाएगा। और ये सीयूटी पीजी की मैथ्स इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, की जा सकती है। लोग ऐਵੇਂ ही डूएबल है। जाते हैं कि ओह मैथ्स पूछ लेगा, हमें तो नहीं। और जहां से लाइक फॉर एग्जांपल मैंने जब अपनी भी मैथ्स क्लास शुरू करी थी कि जी बोलना मत बीच में, जिसको आती भी हो कि ओह ये तो बड़े बेसिक से उठा लिया है आपने, कह रहे जी नहीं यस, नहीं, आप करें और हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा स्टूडेंट साथ दे तो मुझे लगता है की जा सकती है, मैथ्स यस, की जा सकती है। बट हाँ, यस, अगर बिल्कुल आउट ऑफ टच हैं तो 6 महीना लगेगा, 6 महीने से 8 महीने, मतलब यू यस, ट्रू। वांट I think it was Kanav and one other Yash, guy was saying, they were saying Yash, ki, yeah, yeah, they were saying ki basics and all, but that yeah, really helped me as well. I'm not like उनको ये नहीं बोल रहा हूँ. I yeah, guess Kanav is doing maths में he was doing some yeah, bachelor's in he was a maths honors guy, तो उसके लिए तो आसान ही होना था। true. Like for example, एक और लड़की थी भाविनी in the batch, so when I started with one word substitutions, तो she was like, sir ये तो बहुत ही मतलब ये तो ऐसे ही बहुत ही basic हो गया, this is मैं कहा तू you just wait, hang on, let the exam come, we'll talk again. Yeah. And the thing is always, so in teaching there are two things. In my own experience, life experiences, as a teacher my role is to train you when I am not around. Yeah. What do? You have to, so I am not around in the examiner hall any which way, in the exam hall any which way first, so that the student should be competent, and we teach for the lowest denominator. Now wherever you are in the hierarchy you sit there, but हम बिल्कुल नीचे से basically foundation बनाते हुए आते हैं, and that is the role of a teacher. नहीं तो और किस बात के पैसे किस बात के लिए हैं, मतलब it's especially in coaching. And then the skill that has now been developed, ये जो legal वाली, like for example those bare active videos etc etc, you just wait for college to start. I did my interview with IIT खड़गपुर, मेरी स्टूडेंट थी ओशन, अभी उनका लास्ट आपसे पहले एक वीडियो यहाँ पे डला हुआ है चैनल पे, and her professors were amazed कि ये कहाँ से पढ़ के आ गई. She scored a 9.4 CGPA in her first semester, क्योंकि पहले वाले सेमेस्टर का तो काम करके गए हुए ना आप, टॉट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो बेटर समझ में आता है. एंड देन ये वाला जैसे ये जो जैसे कनव वगैरह, दे वर मैथ्स ऑनर्स, दे वर एक्सेप्शनली गुड इन मैथ्स टू बिगिन विद, बट उनको कौन पढ़ा रहा है? वी वर टीचिंग सनमीत, वी वर टीचिंग द अदर स्टूडेंट्स, वी वर टीचिंग द ऑनलाइन गाइस कि करो इसको, यहां से पकड़ लो. एंड हर चीज का समाधान है. 100% आइल तो 100% रादर मैथ्स तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये भी हमें सच्चाई और हकीकत पता है. लाइक इफ दे थ्रो 25 क्वेश्चंस एट अ स्टूडेंट वीक इन मैथ्स, वो नहीं करेगा, बट मैं हमेशा कहूंगा कि 15 करेगा, अगर उसने थोड़ी सी भी मेहनत हमारे साथ साथ में बेसिकली डाली, 15 तो पक्का करे. वैसे वाला सुन. So yeah, sir, this covers all sections. Yeah, that does. और कुछ बचा है एग्जाम के बारे में और कुछ बोलना चाहते हैं? प्रिपरेशन टाइम, लाइक हाउ मच टाइम डज इट टेक one to prepare for, as in how much time should one ideally take, because you joined in Diwali, so the exam was, when was it held? April? That's right. It was held, April 3rd, I guess it was. You prepared for like 6 odd months? Yeah. You know, you prepared every day. Yeah, every day I gave around 3 to 4 hours, and that was enough. क्योंकि बैकलॉग भी था थोड़ा पहले का, है ना. एंड फिर बाय द टाइम आई गेस सीयूटी पीजी तक, जब तक वो पेपर हुआ आई गेस स्टार्ट ऑफ द मार्च में हुआ था. 15th of March, 13th of March ऐसे करके कुछ हुआ था. मार्च 5 तक मेरा सब हो गया था. ग्रेट. हाँ, तो फिर मैं वाज रिलैक्स्ड. उसके बाद मॉक्स वॉक्स की बस प्रैक्टिस करते रहे. प्रैक्टिस थी वो. तो प्रैक्टिस भी हो रही थी as you were releasing mocks. We will be introducing dedicated mocks, and basically मेरे को इस साल basically dedicatedly legal मतलब और करानी है, just because well I foresee a lot of things basically coming. तो वैसे वाला सिनेरियो है. हमें कहाँ से ढूंढ निकाला आप लोगों ने? बॉम्बे में हम तो MHC मतलब वैसे वो कहाँ से, क्या गूगल पे PhD करी थी बैठ कर क्या? नहीं सर, वो एक था randomly कि I don't know sir, even I was preparing for defense honestly. Okay. एंड मुझे कुछ सरकार से रिलेटेड या सरकार से कुछ पास में या कुछ, बिकॉज मेरी फैमिली ने वही किया है, सरकारी नौकरी ही करी. आई डिडंट वांटेड टू गेट इनटू कॉर्पोरेट और एनीथिंग लाइक दैट. राइट. तो आई वाज, पता नहीं वो लॉ आ गया, वो एक बार बाबा ने बोला था कि लॉ कर लेना, मेरे को, मैं चाहता हूँ कि तू ये कर. मैं ठीक है करके देखते हैं. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू कि अच्छे कोचेस लाइक क्लासेस कौन से हैं एंड ऑल. तो फिर आपका फिर उस टाइम पे आई गेस 3 इयर्स वो एनएलसेट के टॉपर्स अपने क्लासेस से निकले थे. राइट. राइट. तो फिर एंड
yeah, I liked it. जो भी इंटरव्यूज थे it really inspired me. Like ठीक है ये करते and जब मैं enroll हुआ क्लासेस चालू हुई I really like the way you taught Yeah, constitution and all. may God bless us with more such students who are, you know, clear in thought like this. कि मतलब ऐसे ही लोग चाहिए जो साथ में काम करें and then basically who are good at heart and good in soul as well. Thank you, sir. ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? Otherwise we wrap this up about No, the sir. exam. Anything else that we have not covered out? I believe that's about it, है ना? That's about it, sir. That's about it. But sir, I do want to say this Yeah. कि अब तो सर आप ही बोलते हो सर कि कोई भी स्टूडेंट आपको छोड़ नहीं पाता है। आई एम से सर अभी भी और अभी लेक्चर्स हैं सर, अभी पूरा क्लासेस जीएलसी थर्ड ईयर तक आपके यूट्यूब वीडियोस चलेंगे सर। हाँ, मैं मेरे तो वो तो दिस हैज बीन अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ माइन इज मैं एक्चुअली बीच में रुक गया था बिकॉज वेल अकेले आदमी है तो इन द सेंस कि आई कीप ऑन गेटिंग बिजी विद दीस क्लासेस इज पहले वाले जो व्हाइट बोर्ड वाले जो वीडियोस जो मैंने बनाए हुए हैं ऑन द चैनल नाउ दे आर क्वाइट डेटेड क्योंकि उस टाइम पे मैंने बस पढ़ाना शुरू करा ही था तो मेरा आप समझ लो वर्जन 1 भी नहीं कह सकता 0.5 ही होगा So now this year, now of course, you know, this is the first time that I'm disclosing this also is that contract and TOTS, basically first semester, I'll be following DU's schedule, then basically teaching. So this is my project for life, in fact, is to teach the entirety of the 3-year LB on YouTube and basically post it out all there. And that too in easy English, क्योंकि पूरी हिंदी में मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ because well English comes slightly naturally to me. और पूरी इंग्लिश में पढ़ाऊंगा देन वो पूरा वीडियो मतलब इन द सेंस इट वोंट रीच द एन मास ऑडियंस दैट रिक्वायर्स दैट सॉर्ट ऑफ हेल्प तो वो जूरिस्प्रूडेंस तो मैं काफी काम कर चुका हूँ एंड देन कॉन्ट्रैक्ट विल स्टार्ट अगेन नाउ टॉट्स विल स्टार्ट अगेन दो सब्जेक्ट तो मेरे रेडार पे हैं ही बेयर एक्ट्स तो we always you know give out bear acts we'll be sending out those to you and then basically आप मतलब अब अगले 3 साल भी हमारे साथ ही हैं और उसके बाद क्या जी जज जूज बनना हो तो भी आ जाओ वापस हम देख लेंगे अपने हम सर ये सर लॉ के लिए सर ये एकेडमी मेरे लिए फिक्स हो गई है अभी हाँ ये और देखिए जहां तक मेरा जो हमेशा जो सोच रहती है कि काम करें तो अच्छा करें काम करें तो पूरा करें और कोचिंग की दुनिया ऑफ कोर्स यू नो कोचिंग में बहुत सारी चीजें हैं बट कोचिंग वाले गाली भी बहुत खाते हैं और खानी भी चाहिए बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डर्टी शेडी टैक्टिक्स दैट आर यूज्ड हाउएवर जो हमारा स्टूडेंट है हम चाहते हैं कि हमारे साथ उसका रिश्ता बने रहे सदा ही और मतलब गाड़ी हमारी आगे चलती ही रहे तो वैसे वाला सिनारियो करेंगे आप लो एंड देन विल मे गॉड ब्लेस यू थैंक यू सर थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द नॉलेज एंड yeah that's about it ठीक है जी आई लव थैंक यू राइट